हाय फ्रेंड्स, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं संस्कृत का चैप्टर 6 कास्ट खंडः। जिससे आगे की वीडियो है संस्कृत में रीडिंग करूँगी, इंग्लिश गुजराती हिंदी में हम एक्सप्लेनेशन समझेंगे। चलो तो फर्स्ट, इन ओल्ड एज एजुकेशनल सिस्टम ऑफ इंडिया vicinity of presbyter and display was of great importance। प्राचीन भारतीय शिक्षण प्रणाली में गुरु और शिष्य का रिलेशन बहुत इम्पोर्टेंट था। उस रिलेशन का बहुत ઇમ્પોર્ટન્ટ था। પ્રાચીન ભારતીય શિક્ષણ પ્રણાલીમાં ગુરુ અને શિષ્યનું સાનિધ્ય એટલે કે એ બેનો રિલેશન સંબંધ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ મહત્વનો હતો. As it was the tradition that a student had to reside in Gurukula for his studies, and so both of them had a chance to stay together for the whole day. थोड़ा सा मैं ऐसे कर दूं। तो पहले गुरुकुल की जो प्रथा थी कि गुरु का जो आश्रम होता है वहाँ पे स्टूडेंट्स को रहना होता है, तो वहाँ पे उसको गुरुकुल कहते हैं कि गुरुकुल में रहने से और उसमें वहाँ पे अभ्यास करने से, विद्या करने से जो दोनों है एक साथ रहते थे, तो दोनों दिन में पूरे दिन साथ रहते होते तो ना कनेक्शन बढ़ ही जाता है। તો ગુરુકુળમાં નિવાસ કરીને વિદ્યાભ્યાસ કરવાની પરંપરાને કારણે આખો દિવસ બંનેને સાથ રહેતો. ગુરુ used to preach the pupil at any time and any place. ગમે તે ક્ષણે, ઘડીએ અને ગમે તે સ્થળે गुरु પોતાના શિષ્યને જ્ઞાન પીરસવાનું રાખતા. जो साथ में रहते थे गुरुकुल में, तो ना गुरु अपने शिष्य को कभी भी कहीं भी कोई सी भी जगह पे ज्ञान देते थे. As a result, along with regular syllabus, a student used to get a chance to acquire knowledge, sometimes naturally or sometimes suddenly. Just इस वजह से अभ्यासक्रम जो सिलेबस होता है हमारा अभ्यास का, वो तो पढ़ते ही थे, उसके साथ साथ नेचुरली भी जो पहले के ज़माने में एक ही पढ़ना ही नहीं सिखाते थे, हर चीज़ सिखाते थे. तो नेचुरली भी कभी कभी एक्सीडेंटली भी कुछ भी नॉलेज मिल जाता था कि कुछ यहाँ पे हुआ है तो चलो एक्सीडेंटली हमें इसे क्या करना चाहिए, वैसा भी नॉलेज मिल जाता था. तो આ કારણે નિયત અભ્યાસક્રમનો પાઠ ભણાવવાની સાથે સાથે ક્યારેક સાહજિક રીતે અને ક્યારેક આકસ્મિક રીતે પણ શિષ્યને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનો અવસર મળતો. Today also this tradition has been preserved in Gurukul and Pathshalas following age-old methods of teaching and learning of Sanskrit. આ પરંપરા આજે પણ પ્રાચીન પદ્ધતિથી સંસ્કૃતનું અધ્યાપન કરાવતી પાઠશાળામાં અને ગુરુકુળોમાં સચવાયેલી છે. ये जो परंपरा है वो आज भी प्राचीन पद्धति से संस्कृत का लेसन सीखने की, संस्कृत का अध्ययन करने की पाठशालाओं में और उनके गुरुकुलों में रही हुई है. One of such incidents is presented in this lesson. उसमें से एक जो इंसिडेंट है वो यहाँ पे लिया गया हुआ है. આવો જ એક પ્રસંગ આ પાઠમાં અહીં લેવામાં આવ્યો છે. ગુરુ while moving on the bank of a river with his disciple suddenly watches a piece of wood floating on water in the river. નદી કિનારે પોતાના શિષ્ય સાથે ફરતા ગુરુને આકસ્મિક રીતે નદીમાં પાણીમાં તરતો એક કાષ્ઠખંડ એટલે કે લાકડાનો ટુકડો નજરે પડે છે. जो यहाँ पे गुरु है वो अपने शिष्य के साथ नदी के किनारे पे चलने जा रहे थे, घूम रहे थे, तो तभी वहाँ पे उन्होंने पानी में, नदी के पानी में एक काष्ठखंड यानी लकड़े के टुकड़े को तरता हुआ देखा. At once Guru's sharp intellect mind becomes active to impart very significant knowledge to his disciple. તરત જ ગુરુની પ્રજ્ઞા यानी कि बुद्धि પોતાના શિષ્યને એક મહત્વનું જ્ઞાન પીરસવા માટે સક્રિય બને છે. जैसे ही वो गुरु जी है वो ऐसे नदी के पानी में लकड़े के टुकड़े को तरता हुआ देखते हैं, तो वो तुरंत ही अपने शिष्य को एक इम्पोर्टेंट नॉलेज देने के लिए सक्रिय बन जाते हैं. वो
उसमें से एक लेसन समझते हैं कि ये एक लेसन है जो मैं अपने शिष्य को बताऊं, पढ़ाऊं, सिखाऊं। द नॉलेज preached by Guru to his disciple at that time and place is very applicable even today. એ સમય અને એ સ્થળે કોઈ ગુરુએ પોતાના શિષ્યને જે જ્ઞાન આપ્યું હતું તે આજે પણ એટલું જ છે, इम्पोर्टेंट છે, प्रस्तुत છે અહીંયા। उस टाइम गुरु ने अपने शिष्य को उस जगह पे जो ज्ञान दिया हुआ था वो यहाँ पे आज भी जस्ट अच्छा है, सुनने लायक है, समझने लायक है, और जो यहाँ पे अभी हमने प्रस्तुत किया हुआ है। Floating is an inherent property of wood. लाकड़ू પોતાના જન્મકાળથી જ પાણીમાં તરવાનો ગુણ ધરાવે છે। जो लकड़ा है वो ऑलवेज पानी के ऊपर तरता है। Fortunately, it has reached to a river meeting the sea. અને તે સમુદ્રને મળતી નદીના પાણીમાં આવી પહોંચ્યો છે। सद्भाग्य, फॉर्चुनेटली એટલે सारा नसीबे, सद्भाग्य वो जो लकड़ा है वो समुद्र को मिलती नदी के पानी में आ पहुंचा है। So naturally this piece of wood is lucky enough to reach the sea, a treasure of jewels. તેથી હવે આ કાષ્ઠખંડને રત્નાકર બનાવતા સમુદ્રમાં પહોંચવાનું સ્વાભાવિક રીતે સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થવાનું છે। सो रत्नाकर, सोने की खान वाला रत्नाकर, समुद्र को रत्नाकर भी कहा जाता है। तो वो जो काष्ठखंड है यानी लकड़े का टुकड़ा है उसको समुद्र में पहुंचने का, वहाँ पे जाने का, नदी के पानी के थ्रू वो सौभाग्य प्राप्त होने वाला है। बट लर्न गुरु कैन सी इवन ऑब्स्टिकल्स इन दिस पाथ ऑब्टेन थ्रू लक बाय चांस। પણ જ્ઞાની ગુરુની દ્રષ્ટિ આ સૌભાગ્ય પ્રાપ્તિના માર્ગમાં વિઘ્નો પણ જોઈ શકે છે। अभी ये लकड़ी का टुकड़ा जो पानी के थ्रू सागर में पहुंचने वाला है, बट जो ज्ञानी गुरु है वो उसके रास्ते में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसको देख सकते हैं। Just Guru informs his disciple that if the piece of wood keeps protecting itself from these obstacles, then only it can reach the sea, otherwise not. આ વિઘ્નો તરફ પોતાના શિષ્યનું ધ્યાન દોરીને ગુરુ જણાવે છે કે જો આ કાષ્ઠખંડ પોતાને આ વિઘ્નોથી બચાવતો રહેશે તો જ તે સમુદ્રમાં પહોંચી શકશે, अन्यथा नहीं। जो गुरु है वो लकड़े के टुकड़े को नदी में आने वाले विघ्नों से बच सकता है, अगर बच गया तो ही वो समुद्र में पहुंच जाएगा, ऐसा अपने शिष्यों को कहता है। गुरु जो है वो 4 विघ्न होते हैं वो देख सकते हैं कि लकड़े के टुकड़ों को रोकेगा, लकड़े के टुकड़े को आगे नहीं जाने देगा, पर लकड़े का टुकड़ा अगर उस 4 ऑब्स्टिकल से बच गया तो वो आगे पहुंच सकता है। तो चलो अभी फिर Here Guru has used a beautiful metaphor by imagining a man as a piece of wood and thus preached his disciple in a very simple way. માણસને કાષ્ઠખંડ તરીકે કલ્પીને ગુરુએ સરસ રૂપ આપ્યું છે અને તે દ્વારા ખૂબ જ સહજ રીતે શિષ્યને ઉપદેશ આપ્યો છે। यहाँ पे गुरुजी ने जो लकड़ी का टुकड़ा है उसको ऐसे इमेजिन किया है कि वो एक मानस है, मनुष्य है, ह्यूमन बीइंग्स है। लकड़े के टुकड़े को मनुष्य का रूप देके बहुत ही सहज रीत से अपने शिष्य को उपदेश दिया हुआ है। Guru preaches that a man who saves himself from 4 kinds of obstacles arising in his life can only have the chance to reach the ocean of happiness. यहाँ पे गुरुजी कहते हैं कि अगर जो कास्ट रूपी मनुष्य अपने लाइफ में आने वाले 4 बुरे कर्म से बच जाता है तो वो अपने संसार रूपी सागर को पा सकता है, सारी खुशियाँ अचीव कर सकता है। ગુરુનો ઉપદેશ છે કે માણસ પણ જીવનમાં આવતા 4 વિઘ્નોથી પોતાની જાતને બચાવી લે તો જ તે સુખરૂપી સમુદ્રને પ્રાપ્ત કરવાનું સૌભાગ્ય મેળવી શકે છે। अभी हम यहाँ पे इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। चलो पहले नाम है काष्ठखंड, पीस ऑफ वुड, लकड़ी का टुकड़ा। आवर्त, वर्लपुल यानी वमन, पानी का वमन होता है, वो पानी में ऐसे चारों ओर घूमता रहता है, राउंड 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 राउंड। संलग्नता, स्टिकिंग, जॉइनिंग यानी जोड़ाण,
जो शिष्य और गुरु का बीच का जोड़ान होता है वो। निमग्नता, सिंकिंग, डुबेला, डूबा हुआ। प्रवृत्ति, एक्टिविटी, अक्ष क्रीडा। गेम ऑफ डाइस यानी जुगानी रमत। गैम्बलिंग। स्नेह रूपम, हैविंग फॉर्म ऑफ एफेक्शन। जीवनम, लाइफ। सुरापानम, ड्रिंकिंग ऑफ वाइन। तमाकू भक्षणम, ईटिंग ऑफ टोबैको। विमुक्तम, टर्निंग अवे फेस फ्रॉम अ थिंग यानी विमुक्ता कोई भी चीज से अपना मुंह फेर लेना वैसे। प्रोनाउन, कंचन, समवन, कोई एक ने। अस्माकम, अवर, ये, हु, व्हाट। ते, दे, एसु, इन द मिडिस्ट ऑफ देम, ते बधामा, ऐसा बोलते हैं, ते बधामा, सर्व बधामा। अब एडजेक्टिव देखते हैं। नियमानम, कास्ट खंड। टू बीइंग टेकन अवे, जस्ट पीस ऑफ फूड के लिए है टू बीइंग टेकन अवे। लाकड़ा ने टुकड़ाने લઈ જવામાં આવતા, જસ્ટ લકડે કે ટુકડો को ले जाने वाला। स्वकीय परिवारे, इन वंस फैमिली। चत्वारः विघ्नाः, फोर ऑब्स्टिकल्स, चत्वारः चार विघ्नों। कीदृशाः विघ्नाः, ऑफ व्हाट काइंड ऑब्स्टिकल्स। सुखरूपं समुद्रम, टू ओशन ऑफ जॉय। सामाजिकः व्यवहारः, सोशल डीलिंग्स। भाररूपः व्यवहारः, बर्डनसम। पतितः जनः, हु इज फॉलन। तादृशः प्रयत्नः, लाइक दैट एफर्ट। आनंदमयम संसार समुद्रम, टू ओशन इन फ्रंट ऑफ वर्ल्ड फुल ऑफ जॉय। अभी हम अव्यय देख लेते। एडवर्ब यानी अव्यय। सह तो विथ, अपि ऑल्सो, इव लाइक, तत्र धेर, नाम नेम, वस्तुतः इनफैक्ट, टू बट, तथापि तो स्टिल, चेत इफ, यद्यपि, ऑल्दो, सर्वत्र, एवरीवेयर, बहिः आउट, परितः ऑन ऑल साइड्स, वा और, सततम कंस्टेंट। अभी हम ये कंपाउंड देखते हैं। देखो कंपाउंड में क्या है कि इसमें से ही समास पूछे जाते हैं, तो आप ये टेक्स्ट बुक के एक बार देख लेते तो फिर आपको आगे एक्स्ट्रा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा मैं मानती हूँ, क्योंकि आज तक मैंने देखे कि जो भी पूछते हैं वो टेक्स्ट बुक में से ही पूछते हैं, आगे का कोई कभी पूछता नहीं है। तो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं। आपको ना ऑप्शन दिए जाते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, कौन सा वर्ड होता है तो कौन सा समास आते हैं, वो ही करना है। उसका मैं शॉर्टकट, बहुत ही अच्छा सा शॉर्टकट, हमें ना मार्क्स लेने हैं, तो मार्क्स के अकॉर्डिंग छोटा सा वीडियो बनाऊंगी कि शॉर्टकट यानी, बस आप वो कर लेना। आई एम श्योर कि आपका मार्क्स पूरे आ जाएंगे संस्कृत में। तो चलो देख लेते हैं। पहले हम टेक्स्ट बुक का तो देखते ही। कास्ट खंड, कास्टस्य खंड, हमें एग्जाम में ये अलग करने नहीं होते हैं। कास्ट खंड वर्ड दिया होगा, नीचे आपको ऑप्शन दिए होंगे। तो षष्ठी तत्पुरुष गंगा तीरे, षष्ठी तत्पुरुष जल प्रवाह है, तो षष्ठी तत्पुरुष गमन मार्गे, षष्ठी तत्पुरुष भराधिक्येन, षष्ठी तत्पुरुष आवर्त पातता, सप्तमी तत्पुरुष प्रवाह रूपः, तो बहुव्रीहि समास स्नेह रूपम, बहुव्रीहि काष्ठ रूपाः, बहुव्रीहि सुखपूर्णम। तृतीया तत्पुरुष हमें ओनली करना होता है, तत्पुरुष वो नयो आता है तभी, बाकी हमें षष्ठी है, सप्तमी है, तृतीया है, वो अलग नहीं डिफाइन करना होता है। संसार रूपम, तो बहुव्रीहि नदी रूपे, बहुव्रीहि आहार निद्रा भयादयः, तो ये इतरेतर द्वंद्व आया, आहार च निंद्रा च भय, चार तीनों अलग अलग किए हुए हैं। तो आहार निंद्रा भयानी बहुव्रीहि प्रवृत्ति रूपः, तो बहुव्रीहि सुख रूपम, बहुव्रीहि भार रूपम, बहुव्रीहि संसार समुद्रम कर्मधारय अक्ष क्रीडा। षष्ठी तत्पुरुष तमाकू भक्षणम, षष्ठी तत्पुरुष चौर कर्म, तो षष्ठी तत्पुरुष मानव जीवने, षष्ठी तत्पुरुष आवर्त भूतानि, बहुव्रीहि सुखादि रूपम, बहुव्रीहि स्वार्थवशात, षष्ठी तत्पुरुष क्रोधवशात, षष्ठी तत्पुरुष नदी जल वियोगः, षष्ठी तत्पुरुष
नदी जलात् वियोगः, पंचमी तत्पुरुष। नदी जल वियोग में नद्या जलम तो वो षष्ठी, नदी जलात् वियोग तो पंचमी। ऐसे इसलिए हमें तो तत्पुरुष ही होता है, वही याद रखना होता है। मोस्टली पूरी टेक्स्ट बुक में ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं तत्पुरुष समास के ही आते हैं। बहुव्रीहि के, नए तत्पुरुष के, नए तत्पुरुष, इतरेतर द्वंद्व समास उसके बहुत ही कम आते हैं। चलो अभी हम पार्टिसिपल देख लेते हैं। सेवनीय शुड बी सर्व्ड यानी सेवा करने योग्य, सेवन करने के योग्य। करणीय शुड बी डन करने के योग्य। उपविष्ट इज सीटेड बैठा हुआ। अपेक्षित एक्सपेक्टेड। निमज्जित प्लंग्ड शंक जस्ट डूबा हुआ, शंक यानी डूबा हुआ। पतितः फॉलन, बाधित ऑब्स्ट्रक्ट यानी अटका हुआ। रक्षिता प्रोटेक्टेड रक्षा हुआ, उसकी रक्षा कई हो गई वैसा। प्राप्तुम फॉर गेटिंग, मिलना मेळवा, प्राप्त करना। आगंतुम फॉर कमिंग, आने वाला। चलो अभी हम पार्टिसिपल देख लिए, अभी हम रूट देखते हैं। वहती वह टू फ्लो। पुच्छति पूछा आता है तो टू आस्क। अर्हति अर्ह टू बी वर्दी ऑफ, लायक होना। उपदेश उपदिशति टू प्रीच टू टीच, उपदेश देना। चलो अभी हम नोट्स देखते हैं, मीनिंग्स यानी प्रदर्शयन शोइंग यानी बताना। प्राप्स्यति विल अटेन रीच, प्राप्त करना। भाराधिक्येन ड्यू टू ग्रेट हैवीनेस, बहुत ज़्यादा हैवी होना, बहुत ज़्यादा भार होना। आवर्तपातता टू बी कॉट इन वर्लपूल, जस्ट वमरमा, वो पानी का जो वमल होता है नदी में उसमें फंस जाना। चत्वारः फॉर, न भवेयुः मे नॉट बी। जीवनम जीवंत, लिविंग ए लाइफ, जीवन को जीने का। सुखपूर्णम फुल ऑफ हैप्पीनेस। शक्नुम वी कैन बी। सेवने इन अटेंडिंग अपन। शक्तिम अतिक्रम्य, सरपासिंग कैपेसिटी, जस्ट हमारी जितनी कैपेसिटी उससे ज़्यादा हमें काम करना। वो न भवेत मे नॉट हैपन। अति भारत्वात् ड्यू टू एक्सपेसिव हैवीनेस। निमज्जन्ति सिंक डूबा हुआ, इत्यादिनी एक्सेट्रा। आवर्तभूतानि बिकम whirlpool, जस्ट વમળ થઈ ગયેલા, વમળમાં ફસાઈ ગયેલા. તરંતઃ फ्लोटिंग, तरता वो जो स्विम करता है ना वैसे तरना. निवसंतः लिविंग, समर्थाः भवाम, वी बिकेम कैपेबल. स्वार्थवशात ड्यू टू सेल्फिशनेस. क्रोधावशात बिकॉज ऑफ एंगर. नदी परिवार जल स्नेह वियुक्त. सेपरेटेड फ्रॉम रिवर वाटर. प्राप्नोति एक्वायर्स, प्राप्त करता है. जो संधि है वो भी इसमें से ही पूछते हैं, आगे ज़्यादा हमें एक्स्ट्रा डाइजेस्ट या ऐसे में से कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं है, और वो भी मैंने एक्स्ट्रा में तो ले ही लिया होता है, बट टेक्स्ट बुक का सफिशियंट है. नदी जल वियोग स्वेस्ति चत्वारोः विघ्नाः, तो नदी जल वियोग च इति, स्वेस्ति यानी च उसमें ऐड किया हुआ है, तो च इति चत्वारः विघ्नाः. गुरुरग्रे, तो गुरु प्लस अग्रे. काष्ठ खंडा यु, तो काष्ठ खंडा प्लस यु. भवंती थी, तो भवंती में पहला ती आता है, उसमें दीर्घई है, तो संधि हम छुट्टी करते हैं तो वो रसोई में हो जाता है, छोटी हो जाता है, तो भवंती इति. वस्तुतस्तु, वस्तुत प्लस तु. सामाजिको व्यवहार, तो सामाजिक व्यवहार. भारूपो भवति, तो भारूप भवति. सर्वत्र, तो सर्वत्र प्लस एव, सर्वत्र प्लस एव. अपेक्षित भवति, तो अपेक्षित प्लस ए भवति. करणीय भवति, करणीय भवति. ततस्ते, ततः प्लस ते. नार्हन्ति, न प्लस अर्हन्ति. सोडपी नहीं बोलते, सोपी बोलते, तो सह प्लस अपी. तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने टेक्स्ट बुक का जो 6 नंबर का चैप्टर है उसके नोट्स, उसका एक्सरसाइज यानी शब्दार्थ वो सब देख लिया. अभी हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे, पहले हम इसका ट्रांसलेशन देखेंगे और फिर इसकी एक्सरसाइज देखेंगे. तो फ्रेंड्स अभी इसका हम ट्रांसलेशन देख लेते हैं, जैसे पहले किया हुआ है.
संस्कृत का टेक्स्ट बुक में से मैं पढ़ूंगी। यहाँ पे इंग्लिश और गुजराती में ट्रांसलेशन लिखा हुआ है। तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं इस ट्रांसलेशन, यानी हमें चैप्टर एक बार समझ ले। काष्ठखंड यानी लाकडानो टुकड़ो, पीस ऑफ वुड। तो गंगातीरे एकः गुरुः शिष्येन सह वर्तमानः आसीत्। So a certain preceptor was wandering about on the bank of the river Ganga with his disciple. ગંગા કિનારે એક ગુરુ शिष्य સાથે ફરતા હતા। जो गंगा नदी है उसके बैंक पे किनारे पे एक गुरु है, वो अपने शिष्य के साथ घूम रहे थे। स जल प्रवाहेण नियमानं कंचन काष्ठखंडं दर्शयन् शिष्यम् अयं जल प्रवाहेण सह समुद्रं प्रास्पयति, परंतु गमन मार्गे तीरे संलग्नता भाराधिक्येन जले निम्नगता आवर्तपातता नदी जल वियोग स्वेति चत्वारो विघ्नाः न भवेयुः तदा एव। Pointing out to a piece of wood being taken away by the current of the water, he said to his disciple, "This will reach the ocean with the current of water, but if on the way of its going the four obstacles, such as being stuck up to the bank, being drawn in the water due to excessively heavy burden, being caught in whirlpool, and separation from the water of the river do not occur, only then it will reach the ocean." वहाँ पे उन्होंने पानी के जो प्रवाह में एक लकड़े के टुकड़े को जाता हुआ देखा और अपने शिष्य को बोला, अपने डिसिपल को, ये लकड़ा का जो टुकड़ा है वो पानी के प्रवाह के साथ दरिया में समुद्र में पहुँचेगा, बट उसके मार्ग में वो बैंक के साथ का वो रिलेशन यानी जोड़ान बर्डन होगा, उसके लिए वो बर्डन से अंदर पानी में डूब जाएगा। वमल आता है पानी का चक्कर, उसमें गिर जाएगा या फिर पानी से अलग हो जाएगा। जो ये चार प्रॉब्लम्स नहीं होंगे तो ही वो समुद्र से मिलेगा, वरना वो नहीं मिलेगा। તો તેમણે પાણીના પ્રવાહ વડે લઈ જવાતા કોઈ લાકડાના ટુકડાને બતાવતા શિષ્યને કહ્યું, આ લાકડાનો ટુકડો પાણીના પ્રવાહ સાથે સમુદ્રમાં પહોંચશે, પરંતુ જો તેના જવાના માર્ગમાં કિનારા પરનું જોડાણ, ભારની અધિકતાને કારણે પાણીમાં ડૂબી જવું, વમળમાં પડવું અને નદીના પાણીથી વિખૂટા પડવું, એ ચાર વિઘ્નો ના હોય ત્યારે જ, એટલે ચાર પ્રોબ્લેમ ના હોય ત્યારે જ. ગુરુરગ્રે ઉપદિશતિ શિષ્યમ. The presbyter further instructs the disciple. जो गुरु शिष्य ने आगे उपदेश आपे छे, जो गुरु है वो अपने शिष्य को आगे उपदेश देकर बोलते हैं कि वयम सर्वे मानवाः अपि काष्ठखंडा इव. All human beings like us are also like place of wood. આપણે બધા મનુષ્ય પણ કાષ્ઠખંડો જેવા છીએ, કે આપણે જસ્ટ લાકડાના ટુકડા જેવા છીએ. हम ऑल जो ह्यूमन बीइंग्स है वो ऐसे ही लकड़े के टुकड़े के जैसे ही है. अस्माकं जीवनमेव नदी. अवर लाइफ इटसेल्फ इज अ रिवर. जो આપણું जीवन ज नदी है, हमारी लाइफ ही एक नदी है, जस्ट लाइक ऑफ नदी के जैसी है, रिवर के जैसी है. परिवारः प्रवाहरूप. द फैमिली इज लाइक द करंट. जो परिवार है, हमारी फैमिली है, वो प्रवाह रूप है. यानी આપણું પરિવાર જે છે એ નદીના વહેણ જેવું છે, પ્રવાહ રૂપ જેવું છે. તત્ર સ્નેહરૂપમ જલમ વહતિ. ધ વોટર ઓફ લવ ફ્લોસ ઇન ઇટ. ત્યાં સ્નેહરૂપી જળ વહે છે. આપણા પરિવારથી, આપણી ફેમિલીથી આપણને સ્નેહરૂપી જળ મળે છે, જસ્ટ આપણને વહાલ મળે છે, સ્નેહ મળે છે. स्वकीये परिवार जीवनम जीवन्तः काष्ठरूपा वयं सुखपूर्णं संसाररूपं समुद्रम् अवश्यं प्राप्तुं शक्नुमः यदि चत्वारो विघ्ना न भवन्ति. Living life in our own family, we like pieces of wood will surely be able to reach the ocean of the world full of happiness if four obstacles don't occur. પોતાના પરિવારમાં જીવન જીવતા લાકડારૂપ આપણે
સુખથી પૂર્ણ સંસારરૂપી सागर जरूर पहुंची सकिए जो 4 विघ्नों ना हो तो। जस्ट हमें जहाँ से प्यार स्नेह मिलता है उस फैमिली में हम अच्छे से खुशी से शांति से रह सकते हैं, संसार रूपी सुख के सागर में हम पहुंच सकते हैं। पर हमारे लाइफ में अगर वो 4 प्रॉब्लम मुश्किल 4 विघ्न ना हो तो। जीवने कीदृशाः विघ्नाः भवन्ति शिष्य अपृच्छत्। ધ ડિસિપલ આસ્ક્ડ વોટ આર ધ ઓબ્સ્ટિકલ્સ ઇન લાઈફ લાइक। जीवन में केवा विघ्न हो एम शिष्य पूछ्यू। वो जो शिष्य होता है वो अपने गुरु से पूछता है कि लाइफ में ऐसे क्या विघ्न होते हैं। गुरु समुपादिशत्। नदी रूपे जीवने आहार निद्रा भयादयः तीरभूताः सन्ति। द प्रेसिपिटर duly advised in the river of life, food, sleep, fear, etc. are like the banks. ગુરુએ ઉપદેશ આપતા કહ્યું, નદીરૂપી જીવનમાં આહાર નિંદ્રા ભય वगैरह किनारा रूप बने छे। जस्ट अभी उसको वो शिष्य को गुरु समझाते हैं कि नदी रूपी हमारे जीवन में खाना सोना डर वैसे वो किनारा रूप बनते हैं। तीरेषु संलग्नता नाम आहार निद्रा भयादिना सेवने सततम प्रवृत्तिः। Being stuck up to the banks mean constant activity of eating food, sleeping or being afraid. કિનારા ઉપર જોડાણ એટલે આહાર નિંદ્રા ભય વગેરેના સેવનમાં સતત પ્રવૃત્ત રહેવું। वो जो किनारों के साथ हमारा जोड़ान है, जिस नदी का जैसे जोड़ान होता है वो 4 भय में से एक भय है, तो वो यहाँ पे फर्स्ट हमें एक्सप्लेन किया हुआ है। तो किनाराओं जो बैंक का रिवर का बैंक होता है वो किनाराओं के साथ कंटिन्यूस अटैच रहना, तो वो उसके उदाहरण से हमारे लाइफ को समझाते हैं कि किनाराओं पर जोड़ान એટલે कि आहार खाना सोना डर उसमें हमें कंटिन्यू हम रहते हैं जो हमारे लिए बहुत ही नुकसानकारक है, तो वो यहाँ पे बताया गया हुआ है। वस्तुतस्तु आहारदायः सेवनीयाः भवन्ति तथापि तत्र सततं संलग्न विघ्न एवं। Now actually food, sleep, fear, etc. are essential, but being constantly sticking to them is surely an obstacle. હકીકતમાં તો આહાર આરોગવા યોગ્ય જ હોય છે, તો પણ તેમાં આહાર જે છે ખાવાનું સૂવાનું એ જરૂરી જ છે, બટ તેમાં સતત જોડાયેલા રહેવું એક વિઘ્ન જ છે। यहाँ पे बोलते हैं कि ये सारे जो खाना पीना डर वो सोना वो सब एक एक्टिविटीज़ है जो लाइफ के लिए ज़रूरी है, बट उसमें कंटिन्यूस उसमें ही हमें अटैच रहना वो एक प्रॉब्लम है। आहार निद्रा भयादिषु सततं प्रवृत्तिरूपः विघ्नः भवति चेत् काष्ठखण्डरूपाः वयं सुखरूपं समुद्रं प्राप्तुं न शक्नुम। If the obstacles in the form of being constantly engaged in eating food, enjoying sleep, being afraid, etc. is there, we like the pieces of wood cannot reach the ocean of joy. આહાર નિંદ્રા ભય વગેરેમાં સતત પ્રવૃત્ત રહેવું જો વિઘ્નરૂપ બને તો કાષ્ઠખંડ રૂપે રહેલા આપણે સુખીરૂપી સાગરને પ્રાપ્ત કરી ના શકીએ। जो ये लाइफ में खाना सोना भय डर पीना वो सब एक ज़रूरी है, बट हम उसमें ही पूरा टाइम वेस्ट करें उसमें ही रचे पचे रहते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ही कारक होता है, हमारे लिए मुश्किल पैदा करता है। तो वो कास्ट लकड़े के रूप में हमारा जीवन है, तो हम अगर इस चीज़ में डूबे रहे तो हम कभी भी सुख सागर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे ये गुरु है वो अपने शिष्य को समझाता है। सामाजिको व्यवहारः भाररूपो भवति। सोशल लाइफ बिकम्स बर्डनसम। जस्ट सामाजिक व्यवहार भाररूप बने छे। सोशल लाइफ भारूप मीन्स बर्डन वाली बनती जा रही है। यद्यपि सामाजिको व्यवहारः सर्वत्र अपेक्षितो भवति। इवन tough sociable behavior is invariably expected everywhere.
जो कि सामाजिक व्यवहाરની બધે જ અપેક્ષા રાખે છે यानी जो सोशल लाइफ है हमारी, वहाँ पे सब अपेक्षा रखते हैं कि हाँ भाई सोशल लाइफ होनी चाहिए, परंतु सह शक्तिमती क्रम्य न भवेत. It should not be exceeding the limit of our strength. परंतु તે શક્તિનું અતિક્રમણ કરીને ન હોવો જોઈએ, यानी कि वो ज़्यादा हमारी शक्ति का ज़्यादा यूज़ करके या उसको बर्बाद करके हमारा सोशल लाइफ नहीं होना चाहिए. ये जनाः स्वकीयां शक्तिमतिक्रम्यः सामाजिकान् व्यवहारान् कुर्वन्ति ते अति भारत्वां निमज्जन्ति एव. The people who engage themselves in social life crossing the limit of their strength surely get drawn by its unbearable weight. જે લોકો પોતાની શક્તિ બહારના સામાજિક વ્યવહારો કરે છે તેઓ અતિશય ભારને લીધે ડૂબી જ જાય છે. जैसे आगे बोला कि हमें हमारी शक्ति, हमारी लिमिट के अनुसार ही सोशल व्यवहार, सोशल लाइफ जीनी चाहिए, सामाजिक व्यवहार करने चाहिए. हमारी हद से ज़्यादा, लिमिट से बाहर अगर हम सामाजिक कार्य करते हैं यानी सोशल लाइफ में करते हैं ज़्यादा इन्वॉल्व, तो वो बहुत बर्डन वाला होता है और जिससे मनुष्य उसमें डूब ही जाता है. निमज्जितः जनः सुखमयं संसार समुद्रं प्राप्तुं न शक्नोति. A person drowned cannot reach the ocean of the world of happiness. और जो डूबेलो मानस सुखपूर्ण संसार सागर ने प्राप्त कर सकतो नहीं. जो वो सोशल लाइफ में डूबा हुआ होता है, वो मनुष्य कभी भी अपने सुखपूर्ण संसार को प्राप्त नहीं कर सकता है. सुरापानम, अक्षक्रीडा, तमाकू भक्षणम, चौरकर्म इत्यादीनि दुर्व्यसनानि मानव जीवने आवर्तभूतानि सन्ति. Drinking, playing dice, chewing tobacco, acts of stealing and such other vices are the whirlpools in human life. ડ્રિંકિંગ એટલે દારૂ પીવું, મદિરાપાન, જુગાર, તમાકુનું સેવન, ચોરી વગેરે ખરાબ વ્યસનો માનવ જીવનમાં વમળ જેવા હોય છે. दारू पीना, जुगार, पत्ते खेलना, कार्ड्स खेलना, टोबैको को खाना, चोरी, वो जो खराब हैबिट्स है, आदतें हैं, वो मानव जीवन को एक ना चक्रवात में घेर लेती है. उसमें से कभी आदमी बाहर नहीं आ सकता, वैसा बोला है यहाँ पे. एषु पतितो जनः बहिः आगन्तुं न शक्नोति. The person fallen into this cannot come out of them. जैसे बोला ऐसे कि इसमें फंसा हुआ आदमी कभी बाहर नहीं आ सकता है. એ બધામાં રહેલો માણસ બહાર આવી શકતો નથી. अतः तत्र पतनमेव न भवेत् तादृशः प्रयत्नः सततं करणीयो भवति. Therefore effort should be made constantly so that falling into them would not take place at all. આથી આમાં પતન જ થાય નહીં, તેવો સતત પ્રયત્ન કરવાનો હોય છે. આ વસ્તુઓ શોખ માટે ઠીક છે, બટ જ્યારે એની આદત પડી જાય ત્યારે આપણને નુકસાનકારક થાય છે. એટલે એમાં કહે છે કે આ બધામાં પડવાનું જ ના હોય, એમાંથી બહાર આવવાનો સતત પ્રયત્ન કરવાનો હોય. जो मनुष्य ये 4 आदतों में, मदिरापान, जुगार, तम्बाकू, चोरी, उसमें जो फंसा हुआ है वो कभी बाहर आ नहीं सकता. सो ऐसी परिस्थिति आ जाए कि उसमें से बाहर ही आ ना सके, उससे पहले ही उसको सतत कंटिन्यूअस ट्राई करना चाहिए कि वो बाहर आए, उसका पतन ना हो, वैसे वो बाहर आए. ये जनाः व्यसनेषु पतिताः सन्ति ते तरन्तः अपि एकस्मिन् स्थाने परितः भ्रमन्ति. The people who fall into vicious habits keep moving round and round in one place even though they float. જે લોકો વ્યસનમાં પડેલા હોય છે તેઓ તરવા છતાં એક સ્થળે ચારે બાજુ ફરતા રહે છે. जो ये व्यसनों से घिरे हुए होते हैं वो आदमी ना इसमें जस्ट बाहर आना चाहता है पर वो पूरा ट्राई नहीं करता है, तो वो एक ही जगह पे ऐसे घूमते रहते हैं, वो कभी बाहर नहीं आ सकते हैं. तेषां प्रगतिः बाधिता भवति. Their progress is hampered. उनका विकास अटक जाता है, તેમનો વિકાસ અટકી જાય છે.
ततस्ते सुखादिरूपं संसारसमुद्रं प्राप्तुं नार्हन्ति. Then they don't deserve to reach the ocean of the world full of happiness. પછી તેઓ સુખરૂપ સંસારરૂપી સાગરને प्राप्त કરી सकता નથી. वो जो इसमें पड़े हुए होते हैं वो बाहर आने का कंटिन्यूअसली ट्राई ही नहीं करते हैं, तो वो फंसते जाते उनका विकास नहीं होता है और वो सुख रूपी संसार रूपी सागर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं. परिवारात् विमुक्तम् एव नदीजलवियोगः. Parting ways with the family is itself like separating from the water of a river. પરિવારથી વિમુક્તા એ જ નદીના જળથી અલગ પડવાનું છે. हमारी फैमिली से हम अलग हो जाते हैं तो ये ही हमारा पतन का कारण होता है. यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर हम कहीं से डूबे हुए हैं, कहीं पे नहीं फंस जाते हैं, तो मेन हमारी फैमिली ही है जो हमें सपोर्ट करके बाहर निकालती है. सामान्यतया परिवारे निवसन्तः एव वयं संसारसमुद्रं प्राप्तुं समर्थाः भवाम. Generally speaking, we living in our family are surely able to reach the ocean of the world. सामान्य રીતે परिवाરમાં रहता જ આપણે સંસારરૂપી સાગરમાં पहुंचवा समर्थ बनिए છીએ. जैसे अभी कहा मैंने, फैमिली में रहते ही हम लोग ये सुख को, संसार रूपी सागर को प्राप्त कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं उनके सपोर्ट से ही. परंतु यदि कश्चितः जनः स्वार्थवशात्, क्रोधवशात् वा परिवारात् प्रतिमुखो भवति, सोऽपि नदी यानी परिवार जलस्नेह वियुक्तः कदाचिदपि ज्ञानेन सुखेन च पूर्णम् आनंदमयं संसारसमुद्रं न प्राप्नोति. But if any person turns his face from his family, being overpowered by selfishness or anger, he being separated from water of the river, never reaches the ocean of the world full of joy, happiness and knowledge. जैसे आगे बोला हुआ है कि फैमिली के साथ ही हमें हमारी बुराइयों से भी हमें ताकत मिलती है, हम बुराई से भी जीत सकते हैं अगर हमारी फैमिली साथ हो तो. बट कोई आदमी है जो अपने स्वार्थ की वजह से या अपने क्रोध यानी गुस्से की वजह से परिवार से अलग हो जाता है, तो वो नदी से अलग हो जाता है, तो वो कभी परिवार का, फैमिली का स्नेह नहीं प्राप्त कर सकता. यहाँ पे लिखा हुआ है, પરંતુ જો કોઈ માણસ સ્વાર્થને કારણે અથવા ક્રોધને કારણે પરિવારથી અલગ થઈ જાય તો તે પણ નદીના પાણી એટલે કે પરિવારના સ્નેહથી જુદો પડેલો ક્યારેય પણ જ્ઞાન અને સુખથી પૂર્ણ એવા આનંદમય સંસાર સાગરને પ્રાપ્ત કરતો નથી. जो ऐसे माइनस पॉइंट से अपने फैमिली से अलग हो जाता है, वो कभी भी खुश नहीं हो सकता, कभी भी खुशी पा नहीं सकता है. चतुर्भ्यः विघ्नेभ्यः रक्षिताः जनाः ज्ञानेन सुखेन च पूर्णम् आनंदमयं संसारूपं समुद्रम अवश्यम प्राप्नुवन्ति. The people saved from the four obstacles surely reach the ocean in the form of world full of knowledge and happiness. 4 વિઘ્નોથી રક્ષાયેલા મનુષ્યો જ્ઞાન અને સુખથી પૂર્ણ એવા આનંદમય સંસારરૂપી સાગરને અવશ્ય પ્રાપ્ત કરે છે. आगे जो हमको 4 विघ्न प्रॉब्लम्स बोले, उससे दूर रहने वाला आदमी, उससे रक्षित होना, दूर होने वाला आदमी ज्ञान और सुख से पूरा हो जाता है और आनंदमय अपना लाइफ बिताता है और संसार रूपी सागर को अवश्य प्राप्त करता है. तो अभी हम यहाँ से चैप्टर की एक्सरसाइज देखेंगे. तो फ्रेंड्स, अभी हम स्टार्ट करते हैं संस्कृत का चैप्टर 6, उसके एक्सरसाइज. फर्स्ट, अधोलिखितेभ्यः विकल्पेभ्यः समुचितम् उत्तरं चिनुत. उसमें फर्स्ट, जल प्रवाहे गुरुः शिष्यं किं दर्शयति. ऑप्शन से क पाषाणखंडम, ख काष्ठखंडम, ग कांचनम, घ गमन मार्गम. सही आंसर है ख काष्ठखंडम. सेकंड, वयं सर्वे मानवाः कीदृशाः इव स्मः. ऑप्शन से क जलम इव, ख नदी इव, ग विघ्ना इव, घ काष्ठखंडा इव. सही आंसर है घ काष्ठखंडा इव. थर्ड, सामाजिको व्यवहारः कुत्र अपेक्षितो भवति. ऑप्शन से क सुखे,
ख शुभ प्रसंगे, ग सर्वत्र, घ अति दुखे। सही जवाब है ग सर्वत्र। फोर्थ, केषां जनानां प्रगतिः बाधिता भवति। ऑप्शन से क भयग्रस्तानां, ख व्यसनीजनानां, ग व्यावहारिकानां, क शिष्यजनानां। तो सही जवाब है ख व्यसनीजनानां। फिफ्थ, गुरुः ब्लैंक सह उपविष्टः आसीत्। ऑप्शन से क शिष्ये, ख शिष्येण, ग शिष्यस्य, घ शिष्यम्। सही जवाब है ख शिष्येण। सिक्स, ब्लैंक प्रतिमुक्तम् एव नदीजलवियोगः। ऑप्शन से क परिवारात्, ख संसारात्, ग व्यवहारात्, ग प्रवाहात्। तो सही जवाब है क परिवारात्। 7, आहारादयः ब्लैंक भवन्ति। ऑप्शन से क सेवनीयाः, ख सेवनीयः, ग सेवनीयो, घ सेवनीयम्। सही आंसर है क सेवनीयाः। 8, सामाजिको व्यवहारः शक्तिमन्नति क्रम्य न ब्लैंक। ऑप्शन से क भवेतां, ख भवेयुः, ग भवेत्, घ भवेयम्। सही जवाब है ग भवेत। 9, गमनमार्गे ब्लैंक विघ्नाः भवन्ति। ऑप्शन से क एकः, ख सप्तः, ग त्रयः, घ चत्वारः। सही जवाब है घ चत्वारः। सेकंड, एक वाक्येन संस्कृत भाषया उत्तरत्। फर्स्ट, गुरुः कुत्र वर्तमानः आसीत्। तो आंसर है गुरुः गंगातीरे वर्तमानः आसीत्। सेकंड, गुरुः कम् उपदिशति। गुरुः शिष्यम् उपदिशति। थर्ड, प्रवाहरूपे परिवारे किं वहति। आंसर, प्रवाहरूपे परिवारे स्नेहरूपं वहति। 4, कीदृशाः जनाः एकस्मिन् स्थाने भ्रमन्ति। आंसर, व्यसनेषु पतिताः जनाः एकस्मिन् स्थाने भ्रमन्ति। 5, विघ्नरहिताः जनाः कीदृशं समुद्रं प्राप्नुवन्ति। आंसर, विघ्नरहिताः जनाः ज्ञानेन सुखेन च पूर्णम् आनन्दमयं संसारसमुद्रं प्राप्नुवन्ति। थर्ड, कृदन्तानां प्रकार लिखत। आगन्तुम, हेत्वर्थ। सेकंड, अतिक्रम्य, संबंधक। पतिताः, कर्तरी। करणीयाः, विध्यर्थ। बाधिता, कर्मणि। संधि हमें जोड़नी है। फर्स्ट, शिष्यः प्लस अपृच्छत। तो शिष्यो पृच्छतः, जो ड है वो जो पॉइंट है ह और अ वो ड हो जाता है, तो उसका हम उच्चारण नहीं करते। पतितः प्लस जनः, पतितो जनः। अतः प्लस तत्र, तो अतस्त्रत। प्रगतिः प्लस तेषां, प्रगतिस्तेषां। गुरुः प्लस अग्रे, गुरुरग्रे। 5, अध्यपदतानां समासप्रकारं लिखत। भाराधिक्येन, तत्पुरुष समास। आहार, निद्रा, भयादय। इतर द्वंद्व समास भी आता है, बहुव्रीहि समास भी। संसार समुद्रम, कर्मधारय। 4, सुखपूर्णम, तत्पुरुष समास। ये 6 और 7 है, कभी एग्जाम में पूछते नहीं है, बट अभी ये जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है सो ले लिया है। धातु रूपाणम परिचयम कार्यत। तो मूल धातु है, पदम है, काल है, पुरुष और वचनम। फर्स्ट वर्ड है गच्छन्ति, तो गच्छ उसका मूल शब्द है, परस्मै पद आता है, वर्तमान है, अन्य पुरुष बहुवचन। पीछे नंति आता है, सो भ्रमंती, तो भ्रम मेन मूल वर्ब, परस्मै पद, वर्तमान, अन्य बहुवचन। अपृच्छत, तो पृच्छ परस्मै पद, हस्त्यन्भूत, अन्य एक वचन। भवेयुः, भव परस्मै पद, विध्यर्थ, अन्य बहुवचन। भवामः, भव परस्मै पद, वर्तमान, उत्तम, बहुवचन। ये भी एग्जाम में नहीं आता है। पुरुष वचनानुसारम शब्द रूपाणाम परिचयम कार्यत। मूल शब्द देने, विभक्ति, वचनम और शब्दार्थ। देशे, तो मूल शब्द देश, सप्तमी विभक्ति है, एक वचन, इन द कंट्री। सेकंड, प्रवाहेण, तो प्रवाह तृतीया, एक वचन, बाय द करंट। अस्माकम, अस्मद षष्ठी बहुवचन, अवर। तीरेषु, तीर सप्तमी बहुवचन, ऑन द बैंक्स।
व्यवहारान् व्यवहार द्वितीया बहुवचन टू द एक्टिविटीज परिवारात परिवार पंचमी एकवचन फ्रॉम द फैमिली अलंग भाषायाम उत्तरम लिखत यानी आपकी मदर टंग में फर्स्ट who does not deserve a real happiness the person who has fallen into any of the bad habits such as drinking gambling chewing tobacco or stealing is like a person caught in whirlpool his progress is hampered. He manages to keep himself above water, but moves round and round the same place and never reaches the ocean of real happiness. Similarly, a person who has left his family being selfish or angry, or one who is overburdened by social activities, does not get happiness. Second, why has author compared man with a piece of wood? The author has compared man with a piece of wood floating on the water of the river of life. Human life is the river. Our family is like the current and love is the water. Living life in the family if we don't encounter the four types of obstacles. We like the piece of wood reaching the ocean, reach the ocean of happiness in due course. Third, which obstacles can be there for a piece of wood to reach the ocean? A piece of wood can get stuck up on the bank of the river. It can get drawn by the excessive weight. It can be caught into whirlpool and keep moving round and round there only. Finally, it may be separated from the water of the river in case somebody throws it out. In all these instances, it is prevented from reaching the ocean. Fourth, explain the obstacle our path, falling in whirlpool. There are whirlpools in the river. If a man is caught in such whirlpools, he cannot escape or go ahead. Similarly, bad habits or vices like drinking wine or liquor, gambling, and stealing are as dangerous as whirlpools. A man fallen into evil ways rarely come out safely. Most probably he is ruined on account of his addiction. It is better to be cautious and keep oneself away from these whirlpools if we desire to reach the ocean of happiness. Ninth, विभागद्वयं यथार्थरीत्या संयोज्यात्. फर्स्ट, आवर्तपातता तो व्यसनेषु सततं पतनम्. तीरे संलग्नता तो आहारादीनां सेवने सततं प्रवृत्ति. जल वियोगः परिवारात् प्रतिमुखतम. ये मैंने सीधा आंसर ही लिखा हुआ है. जले निमग्नता सामाजिक व्यवहाराणां भाराधिक्यम्. अभी हम एक्स्ट्रा देख लेंगे. तो अधोदत्तेभ्यः नाम रूपेभ्यः पंचमी विभक्ति में पीछे आता है वो वर्ड्स होते हैं. पंचमी विभक्ति एक वचन में. तो शिष्यम शिष्यात् शिष्याय तो शिष्यात्. समुद्रेण समुद्रयो समुद्रात् तो समुद्रात्. जनौ जनेभ्यः जनात् तो जनात्. अभी समानार्थी हम देखते हैं. तीरे कुले घोषः गर्ते तो तीरे तो कुले. गुरुः तो उपाध्याय सुधी ज्येष्ठ तो उपाध्याय. शिष्य अंतेवासी सुहृद बंधु तो शिष्य तो अंतेवासी समानार्थी है. काष्ठम दारू नगह द्रुम तो दारू. नदी जानवी वरदा आपगा तो नदी यानी आपगा. गंगा तो विष्णुपदी अहल्या रेणुका तो गंगा का समानार्थी विष्णुपदी. विघ्नः संकटम दहनः पादो तो विघ्न तो संकटम. 8 समुद्र तो तदा जलौद पारावारः तो समुद्र यानी पारावारः. चौरकर्म स्थैन्यम अनुशंस्यम अस्तेयम तो स्थैन्यम. अवश्यम इवं तावत् नूनम तो अवश्यम का नूनम. मुखत्वम वियुक्तः तरतः प्रतिमुखः तो प्रतिमुखः मुखत्वम का समानार्थी. अभी तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप हम लिखेंगे. यहाँ पे पीछे एंड दोनों आते हैं. तो शिष्याः शिष्येभ्यः शिष्येण तो शिष्येण.
ज्ञानाय ज्ञानेन ज्ञानात् तो ज्ञानेन, जलम जलेन जलानाम तो जलेन। अभी हम विरोधी शब्द देख लेते हैं। गुरुः तो महतः विस्तीर्णम, लघुः तो लघु, ऑपोजिट वर्ड से विरोधार्थी। आधिक्यम तो निम्नग्नता न्यूनता, प्रभुतम तो न्यूनता। जीवनम जीवितम, मरणम पुराणः तो मरणम। सुखपूर्णम दुखपूर्णम, वेदना संवेदना तो सुखपूर्णम का ऑपोजिट दुखपूर्णम। निद्रा तो उसका जागृति ही, सुप्तः मंदा तो निद्रा का ऑपोजिट विरोधार्थी जागृति ही। प्रवृत्ति ही, शांति ही, सात्विकी निवृत्ति तो निवृत्ति। अपेक्षितः उत्सित, उपेक्षित काक्षित तो अपेक्षित का ऑपोजिट उपेक्षित। निम्नं जन्ति उदयते तरन्ति आस्ते तो तरन्ति। पतनम तो उत्थानम, गमनम ध्रुवम, पतनम का विरोधी उत्थानम। वियोगः तो विप्रयोगः, संयोगः राजयोग तो वियोग का संयोग। सप्तमी विभक्ति बहुवचन रूप तो पीछे सु आता है तो वो सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। तीरे तीर्योः तीरेषु तो सु आया तीरेषु। संसारेण संसारेषु संसारेभ्यः तो संसारेषु। क्रोधेषु क्रोधेन क्रोधाय क्रोधेषु। अभी वर्तमान काल से उत्तम पुरुष बहुवचन के रूप तो उसमें मह पीछे आता है तो वह आम वाला मह। वहामह वहसि वहन्ति तो मह वहामह। निवसन्तः निवसावः निवसामः तो मह निवसामः। भवति भवत भवामः तो भवामः। वे वर्तमान काल से बहुवचन से रूप वो उत्तम पुरुष बहुवचन थे, ये बहुवचनीय सा तो गच्छन्ति वाले आएंगे। और ते तीन ते न हाफ। गच्छति गच्छत गच्छन्ति तो गच्छन्ति। भवसि भवति भवन्ति तो भवन्ति। कुर्वते कुर्वन्ते कुर्वेते तो कुर्वन्ते। अभी यहाँ पे विध्यर्स अन्य पुरुष बहुवचन तो वो यू वाला आएगा। भवेत भवेताम भवेयुः तो उसमें भवेयुः। वहेहि वहेयुः वहेयम तो वहेयुः। गच्छेयुः गच्छेताम गच्छेत तो गच्छेयुः। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ये 6 चैप्टर पूरा होता है। ये जो रूप है बहुवचन के एक वचन ही है, ये जो रूप से वो तो मैं उसका एक शॉर्टकट आपको बहुत जल्दी वीडियो अपलोड कर दूंगी। आशा रखती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।